Hello students, I am Brijendra Kumar Patel, PGT Chemistry, JNV Golaghat, Assam. Welcome you all in my channel. Today we will see the chemical bonding and molecular structure part 2. So let's start our discussion. In this session we will see octet rule and limitations, bond parameters, bond length, bond angles, bond enthalpy, bond order and resonance, and last hydrogen bonding. So these are the topics we will discuss in this session. So let's start our discussion. First is octet rule. So you know what is the octet rule? So octet means 8. So according to this rule, an atom can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another, means gaining or losing, or by sharing of valence electrons in order to have 8 electrons in their outermost shell. This is known as valence shell. This is known as octet rule. So in very simple way, see what is octet rule actually. So we know atom, it's not found in free state. Why? Because atom is highly unstable. It can exist in free state in the form of molecules. So what are molecules? So when two atoms combine, these atoms may be same or may be different. So when two atoms combine, they form a molecule. So yeah, now the question is how these atoms react with each other and why atoms are reacting with each other. So an atom is said to be stable according to octet rule. An atom is said to be stable if its outermost orbit, it has 8 electrons. It means if in an atom in last orbit there are 5 electrons, it is unstable. If there are 6 electrons, it is unstable. If there is 1 electron, it is unstable. If there are 8 electrons, then atom is said to be stable. So the condition is atom, it must has 8 electrons in its outermost shell. So how can this atom can have 8 electrons? Because in different atoms different number of electrons are present in valence shell. Okay, so let's start first see what is valence shell. So suppose an example we are taking here sodium. Atomic number of sodium is 11. Configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. So in last orbit it has 1 electron. If you draw the structure of atom, first, second, third. In first orbit there are 2 electrons, in second 8 and in third 1 electron. So this atom is not stable. Okay, this atom will, now how can this atom achieve octet condition? So if it gains 7 electrons, then it will have total 8 electrons in third orbit, then it is stable. If it loses its this 1 electron, then this last orbit will be cancelled and the configuration will become now 2, 8. So now this is stable. So it has two conditions, either it can donate electron or gain electron. So this tendency depends on the number of valence electron, means number of electrons present in last orbit. If the number of electrons are less than 4, then it will donate electron, and if number of electrons are more than 4, then it will gain electron, and if number of electrons are 4, then it will share electron. Okay, so this is the octet rule. Now let's see limitations of octet rule. So limitations means what? Here limitation of octet rule, first, incomplete octet of the central atom, means electron deficient molecules. See, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मतलब क्या? लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तो एटम तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? स्टेबल होगा. बट हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें एटम के लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है, फिर भी वो जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है? स्टेबल है. चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं. फर्स्ट मॉलिक्यूल है BeH2. ये हो गया बेरिलियम. एटॉमिक नंबर 4 में कन्फिग्रेशन 2, तो इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इट हैज़ 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. ओके, बट यहाँ पर जो हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा और एक हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा. तो हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन स्टेबल. यहाँ पर भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन स्टेबल हो गया. लेकिन
बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो ये देखिए बेरिलियम के पास अभी सिर्फ 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो लास्ट में होना चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन्स, बस इसके पास कितने लास्ट में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन है कि इसके अकॉर्डिंग यदि 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ही मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह इसमें सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद भी ये कैसा है, स्टेबल है। सो सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeH2। सेकेंड एग्जाम्पल ये है BH3 बोरेन। BH3 में आप देखो बोरॉन एटॉमिक नंबर इसका कितना 5, कन्फिग्रेशन 2 3, तो मतलब इसके पास लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये एक हाइड्रोजन सबके पास अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोरॉन क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो इस कंडीशन में हम देखें तो हाइड्रोजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर देखिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों हाइड्रोजन के पास 2 2 इलेक्ट्रॉन है, तीनों स्टेबल हैं। बट यहाँ बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन के पास आप टोटल काउंट करो कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, सिर्फ 6, तो ये भी कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है AlCl3 एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 है, तो कन्फिग्रेशन क्या होगा इसका 283, 3 मतलब लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा जैसे BH3 का स्ट्रक्चर होता है, तो सेम वही कंडीशन बनेगी, इसमें भी एल्यूमिनियम के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गया। तो ये पहला लिमिटेशन है कि किसी भी बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, उसके बाद भी वो मॉलिक्यूल कैसे हैं, स्टेबल हैं, तो उसको ये ऑक्टेट रूल डिफाइन नहीं कर पाता कि क्यों वो स्टेबल है। देन हम देखते हैं सेकेंड, द एक्सपांडेड ऑक्टेट। एक्सपांडेड ऑक्टेट का मतलब क्या, कि हमने अभी कहा कि इसमें भाई 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए तब स्टेबल है, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें जो सेंट्रल एटम है उसके लास्ट में मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल कौन सा है सबसे पहले, तो ये एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेंगे PF5 का। ठीक है, PF5 में क्या है, PCl5 PF5 दोनों हो सकते हैं, तो PF5 में क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 मतलब कन्फिग्रेशन, ये कन्फिग्रेशन होता है 285, मतलब फॉस्फोरस के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो ये 5 फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, तो फॉस्फोरस के पास खुद के पास लास्ट में 5 थे और 5 इलेक्ट्रॉन इसको 5 फ्लोरीन से मिल गए, क्योंकि एक फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो 5 फ्लोरीन 5 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो इसके लास्ट में कितने हो गए, 5 जो इसके पास खुद थे और 5 इसको कहाँ से मिल गए, फ्लोरीन से, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए। तो ये कैसा हो गया, ये देखिए आप फ्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 और 7th इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लिया, तो फ्लोरीन तो स्टेबल हो गया। ये दूसरा फ्लोरीन भी इसी टाइप से 3rd 4th 5th सारे फ्लोरीन स्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि सब फ्लोरीन के लास्ट में 8 है। बट फॉस्फोरस के पास कंडीशन क्या है, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बनाया है, मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किए होंगे, तो जब ये खुद 5 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो इसको भी 5 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, तो ये इसका स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड मॉलिक्यूल है SF6। SF6 में सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 मतलब कन्फिग्रेशन क्या है इसका 286, लास्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो सल्फर क्या करेगा, सारे फ्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इसके पास मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है। तो इस कंडीशन में अब सल्फर के पास यदि हम काउंट करना चाहें कि भाई सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट ऑर्बिट में, तो इनको यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर हमको कितना मिलेगा, 6 सल्फर के पास थे और 6 फ्लोरीन से मिल गए, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी कैसा हो गया, ये भी हो गया कि जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स से भी ज़्यादा है, उसके बाद भी ये स्टेबल है। फ्लोरीन में आप देख सकते हो कि टोटल कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स सारे फ्लोरीन में हैं। चलिए अब हम देखते हैं आफ्टर एक्सपांडेड रूल, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये लेंगे, ये एग्जाम्पल है H2SO4 का। अब H2SO4 में देखो सल्फर, ये कैसे, इसमें सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16, मतलब 286, 6 के अकॉर्डिंग ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो मतलब से 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर सकता है, बट यहाँ पर इसने क्या किया, 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब देखते हैं H2SO4 में क्या हुआ, तो H2SO4 में इसका यदि हम बॉन्ड देखें तो ये इसका बॉन्ड मिलता है, तो यहाँ से क्लियर है कि हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास है, उसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया। हम कौन से हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया है इस ऑक्सीजन के साथ, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर स्टेबल हो गया।
इसी टाइप से ये हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये यहाँ पर स्टेबल हो गया। तो हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया। अब हम बात करें ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन कैसे स्टेबल हो रहा है। तो ऑक्सीजन के देखिए ऑक्सीजन कैसे यहाँ पर स्टेबल होता है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के लास्ट में देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर है इसका 8, मतलब कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 6, तो लास्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन हैं। आउट ऑफ दिस 6 इलेक्ट्रॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने कहाँ रख कर लिए, यहाँ पर शेयर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब क्या, तो इन माई प्रीवियस वीडियो हमने आपको बताया थी कि कैसे डबल बॉन्ड बनता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके, सल्फर के। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। तो ये डबल बॉन्ड का मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो यहाँ पर तो हो गए 4 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पर स्टेबल हो गया। इसी टाइप से ये ऑक्सीजन भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे स्टेबल होते हैं ये इसमें। फिर इस ऑक्सीजन की बात करें तो ये ऑक्सीजन कैसे स्टेबल हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो कि 2 and 2 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर हैं। इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 और 2 6, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 6 और 2 8, तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी टाइप से सेकेंड ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। बट यहाँ क्वेश्चन आता है सल्फर के पास कि सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये है सल्फर, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर भी नीचे भी डबल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अब देखो सल्फर के लास्ट में कितना हो गया, 4 4 8 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन सल्फर के लास्ट में है, बट होना कितने चाहिए, सिर्फ 8। तो 8 को भी ये एक्सपांड कर रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, तो ये होता है डी ऑर्बिटल के कारण। ये हम हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, बट यहाँ पर अभी हमारे पास कंक्लूजन क्या है कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जो ऑक्टेट रूल का फॉलो नहीं करते हैं। तो ये तो हो गया अभी डेफिशिएंट और एक्सपांडेड। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई यदि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो इसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए, तभी ये स्टेबल होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि 8 क्या है, 8 इवन नंबर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दीज मॉलिक्यूल्स आर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। देखिए कौन सा है, NO2। ये NO में कैसे, तो ये नाइट्रोजन के पास आप देख सकते हैं ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई है यहाँ पर, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं और डबल बॉन्ड है, मतलब वहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन स्टेबल हो गया, बट नाइट्रोजन स्टेबल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, डबल बॉन्ड से इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से है, तो 4 और 3 7, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ये। तो नाइट्रोजन कैसा हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो गई। तो NO ये भी ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं है। हम NO2 को देंगे तो इसमें आप काउंट करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं वो इस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले हम बात करें इस ऑक्सीजन की, तो ये ऑक्सीजन स्टेबल है। कैसे स्टेबल है ये ऑक्सीजन, तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं 2 2 4 और 2 4 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल गया। नाइट्रोजन के पास 2 डबल बॉन्ड है, वहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर है 5, और जो सिंगल बॉन्ड है उससे 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 7। तो फिर से नाइट्रोजन कैसा हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया। तो ये 2 ऐसे मॉलिक्यूल हमारे पास जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर अब हम देखते हैं, ये तो हो गया लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो इससे क्लियर ये चीज़ है कि कोई भी एटम, मतलब सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स वो ऑक्टेट रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं, बट एक अर्लियर स्टेज में समझने के लिए ठीक है कि लास्ट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा, बट ऑलवेज ये कंपल्सरी नहीं है। आफ्टर लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल अब हम देखते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब जब 2 एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो हम कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं उनकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए। तो सबसे पहला पैरामीटर है इसमें बॉन्ड लेंथ। इट इज़ डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। कि बॉन्ड लेंथ क्या होगा, जब 2 एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो 2 एटम मे बी की एटम सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, इनमें बॉन्ड लेंथ हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ मतलब दोनों एटम्स की जो रेडियस है, दोनों एटम्स की रेडियस को आप सम कर दो तो जो लेंथ बनेगी वो बॉन्ड लेंथ कहलाती है। देखिए ये AB टाइप का हमने मॉलिक्यूल लिया है, इसमें एटम ए ये हो गया हमारा स्फेरिकल, एटम B
ये स्फेरिकल हो गया। तो एटम ए की रेडियस और बी की रेडियस, मतलब दोनों के सेंटर को आप मिलाओगे तो ये जो डिस्टेंस हमें मिल रही है ये डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ। तो इस बॉन्ड लेंथ से एक चीज़ तो क्लियर है हमारे पास कि यदि एटम्स का साइज डिफरेंट है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ साइज सेम हो चाहे डिफरेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं। बॉन्ड लेंथ मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एटम्स की जो रेडियाई है, दोनों की रेडियस को आप सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, बॉन्ड लेंथ। ओके, बट ये डायमीटर नहीं कहना है इसको, क्योंकि यदि एटम का साइज अलग अलग हुआ तो फिर डायमीटर चेंज हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सिर्फ दोनों एटम्स की रेडियस को सम कर दो। बॉन्ड लेंथ की यूनिट क्या होगी, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्राम। तो ये हम माइक्रो यूनिट्स यूज़ करते हैं। पिकोमीटर मतलब कितना, 10⁻⁻12 मीटर, एंगस्ट्राम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर, इससे हम रिलेशन बनाएंगे, 10⁻⁹ इट मीन्स नैनोमीटर, 10⁻⁻10 इट मीन्स एंगस्ट्राम, एंड 10⁻⁻12 इट मीन्स पिकोमीटर। तो ये टर्म्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। चलिए, बॉन्ड पैरामीटर में ये तो हो गया बॉन्ड लेंथ। सेकंड, अब हम बात करते हैं कोवेलेंट रेडियाई। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, सिंपल सा कोवेलेंट रेडियस को हम समझ सकते हैं कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो दोनों मॉलिक्यूल पास पास आएंगे। तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगी, जब दो मॉलिक्यूल्स कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हों तो दोनों की बॉन्ड लेंथ का हाफ वो होता है कोवेलेंट रेडियस। और वान डेर वाल रेडियस क्या होगा, इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम्स इन सेपरेट मॉलिक्यूल। चलिए, ये डेफिनेशन से समझ नहीं आएगा, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले कौन सा समझेंगे हम, ये हो गया एक मॉलिक्यूल जिसमें दो एटम्स हैं। ये आप दे सकते हैं दो जो फिल्ड एटम्स हैं, ठीक है, सर्कल्ड एटम है, वो हो गए दो एटम, ठीक है। तो ये हो गया एक मॉलिक्यूल। ऐसे ही हमारे पास एक मॉलिक्यूल और है। तो ये टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं। इसमें जो दोनों एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं। कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पर बनेगा, तो ये हम कहें कि इन दोनों के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है, और इनके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड बना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें जो हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, कोवेलेंट रेडियस और वान डेर वाल रेडियस, वो कैसे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो ये जो रेडियस है, ठीक है, ये हो गया इसका बॉन्ड लेंथ, क्योंकि बॉन्ड लेंथ क्या है, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। इसी टाइप से सेकेंड एटम, तो ये जो डिस्टेंस दिख रही ना, ये हम एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरीन का, ठीक है। तो क्लोरीन का इसलिए ले रहे हैं क्योंकि क्लोरीन में Cl2 जो मॉलिक्यूल बनता है उसमें दो एटम है, तो हमारे पास साइज एक सा रहेगा एटम का, तो समझने में आसानी जाएगी। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होती है 198 पिकोमीटर। तो इसकी बॉन्ड लेंथ कितना है, 198 पिकोमीटर। अब इस बॉन्ड लेंथ का हाफ, ठीक है, बॉन्ड लेंथ का हाफ ये कितना होगा, ये होता है 99 पिकोमीटर। तो ये 99 पिकोमीटर क्या है, ये है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ये 99 पीएम क्या है, कोवेलेंट रेडियस है। अब हम दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ना कि दो एटम। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स के एटम, जो एडजेसेंट एटम्स हैं, उनके बीच की डिस्टेंस, उसको जब हम देखेंगे तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है लाइन, ये क्या है, इसमें इनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस। तो देखिए इसमें ये लाइंस जो हमने ड्रॉ की हैं, ये सिर्फ दिखा रही हैं कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो सी, दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस होती है 360 पिकोमीटर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 360 पिकोमीटर। अब ध्यान रखना है कि ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ एक वान डेर वाल फोर्स है। वान डेर वाल फोर्स मतलब कुछ नहीं, बस मॉलिक्यूल्स पास पास में, तो उनके बीच में एक छोटा सा अट्रैक्शन होता है, तो वो है वान डेर वाल फोर्स। तो यहाँ पर अब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस कितना है, 360 पीएम। ये हो गया वान डेर वाल लेंथ, बॉन्ड लेंथ नहीं है, ये वान डेर वाल लेंथ हो गई। और इसका हाफ कितना हो जाएगा, 180 पिकोमीटर। ये 180 पिकोमीटर है वान डेर वाल रेडियस। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ क्लियर है कि कोवेलेंट रेडियस और वान डेर वाल रेडियस दोनों में कोवेलेंट रेडियस इसकी वैल्यू कम होती है और वान डेर वाल रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होती है। रीज़न क्या है, तो रीज़न ये है कि कोवेलेंट रेडियस, इसमें दोनों एटम्स कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड रहते हैं, और वान डेर वाल रेडियस, तो वान डेर वाल रेडियस में दोनों एटम्स अलग अलग मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स में एटम प्रेजेंट हैं। सो दीज आर दी पैरामीटर्स, फर्स्ट बॉन्ड लेंथ एंड
बॉन्ड लेंथ से कोवेलेंट रेडियस एंड वान डेर वाल रेडियस। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कोवेलेंट रेडियस कौन सा है, 99 पिकोमीटर ये है कोवेलेंट रेडियस और 180 pm ही ये है वान डेर वाल रेडियस। सेकेंड पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो बॉन्ड एंगल हमने पढ़ा हुआ है बॉन्ड एंगल के बारे में कि जब भी एटम क्या होगा, ये सपोज एक एटम है, ये दूसरा एटम है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, जूनियर क्लास में ठीक था, अभी जब हम पढ़ेंगे तो आपने ऑर्बिटल अप्रोच पढ़ा होगा, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल, ठीक है, एस पी डी एफ, ये सब सेल जो हैं, तो इन्हीं सब सेल के बीच का एंगल वो कहलाता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। चलिए डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन इज इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच का एंगल वो कहलाता है बॉन्ड एंगल अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स आयन। बॉन्ड एंगल इज एक्सप्रेस्ड इन डिग्री, क्योंकि जब भी हम एंगल की बात करेंगे तो 180 डिग्री 90 डिग्री यही होता है। इट गिव्स सम आइडिया रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्बिटल्स अराउंड द सेंट्रल एटम in a molecule or complex ion and hence it helps us in determining its shape। शेप का मतलब क्या है कि जो ये जो एग्जांपल हमने लिया ये वाटर मॉलिक्यूल का है, तो वाटर मॉलिक्यूल में क्या है, इसका शेप कैसे है, वी शेप दिख रहा है। तो वी शेप का मतलब क्या, वी शेप का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, ठीक है, तो इसमें आप ये देखना कि इनके बीच का जो ऑर्बिटल है और इनके बीच का जो ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटल के बीच का एंगल कितना है, ये एंगल है 104.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, बॉन्ड एंगल इज नथिंग एल्स जस्ट द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीजन के पास जो दो डॉट्स दिख रही हैं आपको वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उसके बारे में हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम अभी ये देखते हैं कि O और H इनके बीच में बॉन्ड बना है, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड पेयर्स या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। चलिए बॉन्ड एंगल में फिर हम इससे स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे कि स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा। तो H2 का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं 104.5 डिग्री, ये एग्जाम्पल है BeCl2 का, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। BF3 का स्ट्रक्चर कैसा है, ट्राइगोनल प्लेनर, और बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा 120 डिग्री। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा है, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितना मिलेगा 109.5 डिग्री। तो बॉन्ड एंगल, यदि हमें बॉन्ड एंगल मालूम है तो हम मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ये हो गया सेकेंड बॉन्ड एंगल। थर्ड पैरामीटर दिस इज बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, तो ये आपको मालूम है कि जब भी दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड बनाने के समय इस चीज़ को याद रखना कि जब भी कहीं पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड के फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जब बॉन्ड बन जाएगा तो मॉलिक्यूल और एटम, इनमें अब आप कंपेयर करो एनर्जी का, तो दो एटम्स है हमारे पास, दोनों एटम्स की एनर्जी कितनी है, तो सपोज़ ये एटम लिया हमने A प्लस ये दूसरा एटम लिया A, ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, A सिंगल बॉन्ड A। इस एटम की एनर्जी सपोज 10 जूल है, इस एटम की भी एनर्जी 10 जूल है, तो ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है इस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होनी चाहिए 20 जूल, नहीं ये एनर्जी होती है 15 जूल, और इन दोनों के सम से कम होगी। तो ये जो -5 का डिफरेंस आ रहा है ना, इतनी एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। तो जब रिलीज़ हो जाएगी तो यही एंथैल्पी है बॉन्ड एंथैल्पी। तो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा तो जितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो है बॉन्ड एंथैल्पी। या इसी को हम रिवर्स करते हैं, रिवर्स कैसे, अब ये जो मॉलिक्यूल हमारे पास A सिंगल बॉन्ड A, इसको ब्रेक करना है, इन दोनों में ब्रेक करना है, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, 15 जूल इसके पास पहले से एनर्जी है, एटम्स की एनर्जी 10 जूल है, तो इसको 5 जूल की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तब ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक बॉन्ड, देखो दोनों चीज़ें हैं, यदि बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी, और बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो एनर्जी में जो भी डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस दोनों टाइम सेम रहेगा, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है ब्रेक करने के लिए उतनी ही एनर्जी इसको एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो ये होता है बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है।
सी डेफिनेशन, it is defined as the amount of energy required to break one mole of bonds of a particular type between two atoms in a gaseous state. Unit of bond enthalpy is kilojoule mole inverse. Example, H2 मॉलिक्यूल. H2 मॉलिक्यूल में आपको मालूम है दो हाइड्रोजन एटम है, तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स को अलग अलग यदि करना है तो उसके लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 435.8 किलो जूल पर मोल. इतनी एनर्जी जब आप H2 को देंगे तो दोनों हाइड्रोजन अलग अलग हो जाएंगी. रिएक्शन कैसी होगी? ये हो गया H2 मॉलिक्यूल, इसने जब 435.8 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो फिर ये दोनों एटम्स अलग अलग हो गए. ठीक है, ये हो गई एंथैल्पी. कौन सी? बॉन्ड एंथैल्पी, कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं O2 का. O2 को ब्रेक करने के लिए हमको 498 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी चाहिए. फिर N2 की बात करें तो N2 में भी आप देखो तो N2 में क्या होगा? N2 में दोनों नाइट्रोजन एटम्स को ब्रेक करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हमको 946 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी हमको इसको सप्लाई करनी पड़ेगी. तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पर सिंपल सी चीज़ ये समझना है, ठीक है, क्या चीज़ समझना है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है बॉन्ड एंथैल्पी. In polyatomic molecules, average bond dissociation enthalpy is taken into account. अब polyatomic molecules मतलब क्या? ये आपने H2, O2, N2 देखा तो ये कैसे हो गए? होमोएटमिक हो गए. क्यों? क्योंकि दोनों एटम्स कैसे हैं? सेम हैं. पॉलीएटमिक जिसमें दो से ज़्यादा एटम्स हों, 3, 4, 5 ऐसे एटम्स होंगे, तो फिर उनके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है या बॉन्ड एंथैल्पी है, इसको हम एवरेज लेके चलते हैं. एवरेज क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है. हम एग्जाम्पल लेते हैं H2O का. तो H2O में क्या होगा? H2O पहले जब H2 को ब्रेक करेंगे तो ये बनाएगा H एंड OH. इसके लिए 504 किलो जूल मोल इनवर्स एनर्जी चाहिए. फिर OH में से भी H को अलग करना है, H और O अलग अलग करेंगे तो फिर सेकेंड टाइम 427 किलो जूल मोल इनवर्स की एनर्जी चाहिए. ऐसा क्यों होता है? तो रीज़न देखो. सबसे पहले हम ये स्ट्रक्चर बनाते हैं HOH. यहाँ पर पहले इसको ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के लिए कितना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर लिया? इसने एब्जॉर्ब किया 502 किलो जूल मोल इनवर्स. तो इन दोनों से क्या बनेगा? इन दोनों से बनेगा हमारे पास OH, और O के ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा? माइनस, क्योंकि H क्या बनाएगा? प्लस बनाएगा. तो अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट चेंज हो गया. अभी H2 न्यूट्रल था बट OH कैसा हो गया? एक आयन हो गया. तो आयन हो गया, इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, या फिर कम हो जाएगा. तो इसमें कंडीशन क्या बनेगी? अब इसमें कंडीशन ये बनेगी कि ऑक्सीजन के पास क्या पहले से इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड में भी क्या होता है? यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होती है. तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगा? रिपल्सन होगा. तो जब रिपल्सन होगा तो ऐसी कंडीशन में इस बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है? अनस्टेबल है. तो इसलिए हमको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो इसको सिर्फ आप 427 जूल एनर्जी सप्लाई करेंगे और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा. तो यहाँ पर अब ये क्वेश्चन है, देखो दोनों ही प्रोसेस में बॉन्ड हमने कौन सा ब्रेक किया है? बॉन्ड ब्रेक किया है हमने OH बॉन्ड, क्योंकि फर्स्ट में ये भी OH बॉन्ड है और सेकंड में ये तो OH ही है. तो OH बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है? तो ये दो अलग अलग हैं, इन दोनों का हम एवरेज लेते हैं फिर. तो ये एवरेज होती है एवरेज डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ये कब हम लेंगे? जब पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स होंगे. ओके, सी नेक्स्ट. यहाँ पर स्टेटमेंट अब हम ये लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस, द डिफरेंस इन डेल AH0, मतलब ये एंथैल्पी है, ठीक है, ये इसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे. एंथैल्पी मतलब एक एनर्जी है. एंथैल्पी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो दिस डेल H, this is different for these two reactions. Why? It is due to the change in difference in chemical environment and hence average bond dissociation enthalpy is used. तो ये तो सिर्फ H2O का केस हो गया. यदि हमने मॉलिक्यूल लिया है CH4 तो ये देखिए H C H H, इसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं. तो इसका मतलब 4 हमको CH बॉन्ड ब्रेक करने हैं. तो पहला आप बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जैसे पहले इसको ब्रेक किया, इन्वायरमेंट चेंज हो गया, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा अब
कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम जैसे जैसे बॉन्ड ब्रेक करते जाएंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन की वैल्यू जो एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी है, वो चेंज होती जाएगी। तो हमको चारों के लिए तो कैलकुलेट करना है, चारों के लिए हमने अलग अलग स्टेप में कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हम हमेशा बात करते हैं CH बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। तो जब हम CH बॉन्ड की बात करेंगे तो वहाँ एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स में थर्ड, बॉन्ड एंथैल्पी। अब बॉन्ड एंथैल्पी से एक चीज़ याद रखना कि बॉन्ड एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी मॉलिक्यूल उतना स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यदि मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमको 100 किलो जूल मोल इनवर्स की एनर्जी चाहिए और दूसरे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 200 एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस में ज़्यादा है, 200 वाली में ज़्यादा है। इसका मतलब वो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा मॉलिक्यूल उतना स्टेबल होगा। तो सिंपल से इस कंसेप्ट को याद रखना, बॉन्ड एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर्स में जो फोर्थ पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, पॉइंट क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग एल्स, जस्ट इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स बॉन्डेड इन अ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ बॉन्ड्स मतलब हमने हाइड्रोजन में देखा है, हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन के केस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो वहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1। क्यों? इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ईच, सो देयर बॉन्ड ऑर्डर इज 1। ठीक है, तो जितने जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे उतना ही बॉन्ड ऑर्डर उसका होगा। एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं तो 2 होगा, 3 शेयर किए हैं तो 3 होगा। सिर्फ 2 एटम्स के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, bond order number of covalent bonds between two atoms. In case of oxygen they share 2 electrons each, so the bond order is 2. ठीक है, बॉन्ड को क्या कहेंगे हम, डबल बॉन्ड। इन केस ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड ऑर्डर है 3। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, उसमें बॉन्ड ऑर्डर हमको सेम मिलेगा। ठीक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इसका F2 एंड O2 माइनस। F2 एक फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो F2 मतलब हो गया 18। O2 2 माइनस मतलब क्या, O2 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो यहाँ पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है तो एटॉमिक इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 16। और 2 माइनस, तो ध्यान रखना सिंगल माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया है, 2 माइनस मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो O2 में थे 16 इलेक्ट्रॉन्स और 2 माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने और गेन कर लिया, तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन O2 2 माइनस दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। देन नेक्स्ट N2 एंड CO, N2 एटॉमिक नंबर 7, तो N2 कितना हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स, एंड CO कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो 6 + 8 कितना हो गया 14। तो इस केस में भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका 3। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट हमारा। नेक्स्ट कंसेप्ट है विद इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, बिकॉज if bond order increases means bond enthalpy will also increase and bond length will decrease। सीधा सा इसका मतलब हमको समझना है कि यदि बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, पर यदि बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो 2 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और ये बहुत सिंपल सी बात है कि आपको एनर्जी कब ज़्यादा देनी पड़ेगी, जब सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी देना है, और ज़्यादा एनर्जी देंगे मतलब मॉलिक्यूल जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ज़्यादा हो गई। तो सीधा सा है कि जितना बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल सा है, विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज बॉन्ड लेंथ विल डिक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे 2 एटम्स के बीच में, उनके बीच की डिस्टेंस भी कम होती जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया हमारा बॉन्ड पैरामीटर्स। आफ्टर बॉन्ड पैरामीटर्स नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखेंगे अभी, अब ये है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखे हैं, उन सभी स्ट्रक्चर्स में किसी भी एक मॉलिक्यूल के लिए आपने लुईस सिंबल, प्रीवियस वीडियो में इसको आपने समझ लिया है। तो लुईस सिंबल एक मॉलिक्यूल के लिए फिक्स है, बट इन सम केसेस
सिर्फ एक स्ट्रक्चर से आप मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मीन्स व्हाट? डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस: whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, कि जब एक स्ट्रक्चर से मॉलिक्यूल को पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करना मतलब उसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना। तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर से हम मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सारी प्रॉपर्टीज़ को। तो फिर हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स हम यूज़ करेंगे, और इन सारे स्ट्रक्चर्स की एनर्जी, पोजीशन ऑफ एटम्स, ये सब क्या रहेगी? सेम रहेगी। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स इनकी पोजीशन में चेंज आएगा। तो हमारे पास ये क्या, और इनको हम कह सकते हैं ये एक पॉलीमॉर्फिज्म है, मतलब जो हम कहते हैं ना डुप्लीकेट। तो इसमें एक स्ट्रक्चर को हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, बट उन सारे स्ट्रक्चर्स की टोटल एनर्जी, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये सब क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं हम कार्बन, ये कार्बोनेट का। कार्बोनेट में क्या है? CO3 2-, तो ये इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं CO3। अब CO3 में देखना, कार्बन के लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है अब कि हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ 2 ऐसे ऑक्सीजन होंगे जो कि एक एक इलेक्ट्रॉन उनके साथ कार्बन शेयर करेगा, मतलब ये होगा इनका स्ट्रक्चर। इस टाइप से ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 8। आप काउंट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड मतलब 4 इलेक्ट्रॉन और 4 डॉट्स, ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन स्टेबल है। बट सेकेंड ऑक्सीजन की हम बात करें तो सेकेंड ऑक्सीजन में क्या होगा? 2, 4, 6। ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? तो ऊपर जो 2- है, CO3 2- मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ जाएंगे? दोनों सिंगल बॉन्ड से जो ऑक्सीजन बॉन्डेड है उनके पास। क्योंकि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर कितना है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 8। कन्फिगरेशन होता है 2, 6। तो ऑक्सीजन के लास्ट में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन एक तो इसने कार्बन के साथ शेयर कर लिया, तो इसके लास्ट में बचे 5। तो यहाँ पर हमें 6 दिख रहे हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन मतलब वो 2- में से 1- यहाँ पर प्रेजेंट है। इसी टाइप से सेकेंड ऑक्सीजन में भी यही केस होगा। ठीक है। एक्चुअली कार्बोनेट का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर क्या है? तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है C, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर है O, यहाँ पर ये H, यहाँ पर है O, और यहाँ पर है ये H। तो अब इसमें देखोगे यहाँ पर क्या होगा? ये तो क्लियर है। यहाँ पर कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन इनके साथ शेयर कर लिया इसने। अब ऑक्सीजन की बात आती है, तो ऑक्सीजन के पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन थे। इन 6 इलेक्ट्रॉन में एक इसने यहाँ शेयर कर लिया, एक इसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, 2, और 4 इसके पास यहाँ पर बचे हैं। 2 और 4 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। और ये हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8। जब यहाँ ये मॉलिक्यूल कौन सा है? ये मॉलिक्यूल है H2CO3। इसमें से आप H को हटाएंगे तो ये बनाएगा H+। जब दोनों हाइड्रोजन हटाएंगे तो CO3 के ऊपर चार्ज क्या आएगा? CO3 2-। तो यही केस है कि यहाँ जो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये भी ऑक्सीजन के पास आ गया है। तो इसलिए यहाँ पर क्या चार्ज आ रहा है? CO3 2-। चलिए अब इसमें देखते हैं हम कि इसका रेजोनेंस कैसे हो रहा है। तो एक तो इसका ये स्ट्रक्चर पॉसिबल है, हम दूसरी तरीके से भी इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। और वो कैसे? तो फिर से CO की पोजीशन सेम है, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने चेंज कर दी। यू कैन सी वेरी क्लियरली अब डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई, बट कंडीशन इसमें कहीं कोई चेंज नहीं हो रही है। ऑक्सीजन के पास जो सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन बॉन्डेड है उनके पास एक माइनस चार्ज है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों में बाकी सब चीज़ें सेम हैं, सिर्फ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? इनकी पोजीशन में। ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर, इन दोनों की एनर्जी सेम होगी, नंबर ऑफ एटम सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फिर इसी टाइप से हम फिर से डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स को अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कहीं कोई चेंज नहीं है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं? बॉन्ड्स को चेंज कर रहे हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर जिसमें एनर्जी सेम रहेगी, न्यूक्लियस या एटम्स की पोजीशन सेम रहेगी, सिर्फ कहाँ चेंज आएगा?
चेंज आएगा तो उससे बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर में। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब तीनों स्ट्रक्चर्स को यदि मैं मर्ज करके एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये तीन क्या हो गए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। मैं तीनों को मर्ज करके बनाना चाहूँ तो ये किस तरीके से बना सकते हैं, मतलब अब हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं जिससे मैं तीनों स्ट्रक्चर्स को डिराइव कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, अब आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखो तो एक चीज़ तो कॉमन है कि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है। चलो ठीक है, हमने सबके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दिया। सिंगल बॉन्ड बनाने के पास ये जो डबल बॉन्ड है, कौन सा डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, इसके एक इलेक्ट्रॉन को उठा के मैं यहाँ पर ला रहा हूँ। तो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो सारे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इन दोनों माइनस चार्ज को कहाँ भेज दूंगा, इस पोजीशन में। तो स्ट्रक्चर क्या मिलेगा हमको, ये इस टाइप से होगा। देखो 2, ये हो गया स्ट्रक्चर। ये डॉटेड लाइंस क्या दिखा रही हैं, डॉटेड लाइंस का मतलब है कि हमको डबल बॉन्ड भी तो बनाना है। तो जिन भी दो के बीच में डबल बॉन्ड बनाना है वहाँ डबल बॉन्ड बना दो। और ये जो 2 माइनस चार्ज है ना, तो इनको अब देखो इससे हम कौन सा स्ट्रक्चर ड्राइव करना चाहते हैं, हम उस चीज़ को देख लेते हैं जो भी स्ट्रक्चर हम ड्राइव करना चाहें। ठीक है, तो ड्राइव कैसे करेंगे, यहाँ पर डेरिवेशन ही आएगा। सपोज मैं इस स्ट्रक्चर को डिराइव करना चाह रहा हूँ तो क्या करूँगा, सी डबल बॉन्ड ओ, इस जो डॉटेड लाइन्स है, लाइन है ना ये वाली, इसको मैं सॉलिड कर दूंगा। सॉलिड करने से यहाँ पर ऑक्सीजन के पास कितने आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से मैं डॉट लाइन को हटा दूंगा क्योंकि डॉट लाइन को मैंने यूज़ कर लिया। तो इसके पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन थे। ये जो 2 माइनस वाला दिख रहा है तो यहाँ से 1 माइनस को उठा के इसके ऊपर डालूंगा। तो 1 माइनस मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कौन सा आएगा इसके ऊपर, माइनस। ठीक इसी टाइप से इस ऑक्सीजन को यहाँ लगाएंगे तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से हैं, 1 माइनस और डालूंगा इसके ऊपर तो ये हो गए 6 और ये माइनस चार्ज। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा हो गया, थर्ड स्ट्रक्चर की जैसा हो गया। तो इस एक स्ट्रक्चर से मैं कोई भी स्ट्रक्चर ड्राइव कर सकता हूँ। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें से हम सारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर को ड्राइव कर सकते हैं उसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो देखिए कौन क्या है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, दीज आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड फोर्थ इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब इससे मैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स को डिराइव कर सकता हूँ। तो ये जो फिनोमेनन है कि जिसमें properties of a molecule, all the properties of a molecule cannot be described only by one structure, then we use more than one structures. These different structures are called canonical structure, and one structure, that is resonance hybrid. From this resonance hybrid we can derive any structure. Okay, so this is resonance. After resonance, the next part is hydrogen bonding. Now what is hydrogen bonding? So this is one of the most important term. Hydrogen bonding, the attractive force which binds hydrogen atoms of one molecule with electronegative element FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सिंपल सा इसको समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब हाइड्रोजन और इन तीनों में से कोई भी एक एटम, ठीक है, किसके किसके बीच में बॉन्ड बनना चाहिए, हाइड्रोजन एटम और इन तीनों में से कोई भी एक एटम, इनके बीच में एक वीक बॉन्ड बनेगा। उस वीक बॉन्ड को हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ इस चीज़ को क्लियर रखना कि हमने जो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ी है वो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग 3 टाइप्स की ही है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो तीनों स्टेबल और वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, दिस इज अ वीक फोर्स। ठीक है, तो वीक फोर्स, और ये कब मिलेगा, जब हाइड्रोजन और इन तीन में से कोई एक प्रेजेंट रहेगा, तभी इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो रीजन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है पोलर नेचर ऑफ HF, HO और HN बॉन्ड। अब देखिए पोलर नेचर क्या है, तो सपोज मैंने यहाँ पर बना लिया H और F। ठीक है, इन HF के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के पास कितने होते हैं लास्ट में, 7 इलेक्ट्रॉन, 6 और 1 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ शेयर करेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन फ्लोरीन में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो फ्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इंस्टेंटेनियस माइनस चार्ज,
और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इंस्टेंटेनियस प्लस चार्ज। तो ये जो दोनों के बीच में बॉन्ड बना था, ये बॉन्ड कैसा हो गया, पहले तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, बट ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसा हो गया अब, ये हो गया आयोनिक नेचर का, क्योंकि दोनों में क्या हो गया, प्लस और माइनस बनने लगा। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं एच एफ एच एफ एच एफ, इस टाइप से अलग अलग मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो अब हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पार्शियल प्लस, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल माइनस, यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल प्लस, यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल माइनस। तो ये प्लस माइनस में क्या होगा, वीक अट्रैक्शन होने लगेगा। तो इस वीक अट्रैक्शन को हम कैसे शो करते हैं, एफ और एच इनके बीच के वीक अट्रैक्शन को ये डॉटेड लाइन से। तो ये जो डॉटेड लाइन से ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये 100% आयोनिक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन 100% शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। आयनिक बॉन्ड तब बनेगा जब एक कंप्लीट डोनेट करे और एक कंप्लीट गेन करे। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को मिड पोजीशन से हम इनको सिर्फ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसमें रीज़न क्या है, रीज़न है पोलर नेचर ऑफ HF बॉन्ड। इसी टाइप से HO HN। तो यहाँ देखना है आप, हाइड्रोजन इसका नेचर है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, और बाकी जो तीन हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 4, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5 और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3। तो इसका मतलब क्या हो गया, मीनिंग ये है कि ये जो हाइड्रोजन है ये सिर्फ इन तीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और इन्हीं तीन के साथ क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कंडीशन कंपलसरी याद रखना है आपको। कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, हाइड्रोजन कंपलसरी है और तीनों में से कोई भी एक। इसको याद रखने के लिए हम फोन कहते हैं, फोन में से कोई भी एक और हाइड्रोजन, इनके बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। सो सी, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फर्स्ट है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, it is formed between two different molecules of same or different compounds. Remember this thing, इंटरमॉलिक्यूल मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स कौन से, तो पहला मैंने मॉलिक्यूल लिया है H2O, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा मॉलिक्यूल लिया मैंने सेकेंड H2O, तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हो गए। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कैसे, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अभी आप देख रहे हैं ना कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये परमानेंट बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कौन से ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये देखिए ये डॉटेड लाइंस दिख रही ना, ये डॉटेड लाइंस क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी टाइप से दूसरा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन कहाँ है और ऑक्सीजन कहाँ है, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में है और ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल में, उनके बीच में बॉन्ड बना है, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं इसमें, लेकिन इन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में है, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल हो गया, और ये सेकेंड मॉलिक्यूल हो गया। तो हाइड्रोजन फर्स्ट मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन सेकेंड मॉलिक्यूल में, इन दोनों के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन सी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सेकेंड एग्जांपल लेंगे हम HF का। तो HF में भी कंडीशन अभी हमने देखा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल में है, फ्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल में है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो ये हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या होगा, इट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम्स, इट इज इन between the two highly electronegative atoms, ठीक है, present within the same molecule। same molecule मतलब अब आप देखो ये कंडीशन कैसे हो रही है, हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ये टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स कौन से हैं, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में ये बेचारा फंस गया है। सो दिस हाइड्रोजन इज बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ओके। और फिर इसमें देखना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, जो कि हमने डॉटेड लाइन से शो किया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हाइड्रोजन कहाँ है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं, तो ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर।
ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ। डिफरेंस क्या है? व्हेन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स both are present in the same molecule, then it is intra. If they are present in different molecules, they are inter. तो ये दो हो गया टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसे याद रखना। फिर इसके बाद नेक्स्ट, आफ्टर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नेक्स्ट अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि प्रॉपर्टीज में क्या इसका इफेक्ट पड़ता है। फर्स्ट इफेक्ट पड़ता है इसमें फिजिकल स्टेट में। फिजिकल स्टेट कैसे? तो इसमें एग्जांपल हम लेंगे H2O और H2S का। H2O इज लिक्विड वाइल H2S इज गैस। ऐसा क्यों होता है? तो सीधा सा रीज़न देखना है। ये हमने बनाया H2O, ये मैंने सेकेंड बना लिया H2O, ठीक है। फिर ये H2S बना रहा हूँ मैं, ये हो गया H2S और यहाँ पर भी हो गया H2S। तो अब आप ये सेकेंड चीज़ देखिए कि यहाँ पर जब दोनों, अभी तो सेपरेट मॉलिक्यूल्स हैं, सेपरेट मॉलिक्यूल मतलब गैस में है, दोनों को सपोज हम गैस मान के चलते हैं, तो गैस में इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर इन दोनों के बीच में बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से ये दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे? पास पास आएंगे। तो इसका मतलब इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम होगी। तो अब हम लिक्विड और गैस में डिफरेंस हमने पढ़ा है, गैसेस में इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस हाईएस्ट होती है और लिक्विड में उससे डिस्टेंस कम होती है। तो यहाँ पर देखो, यदि दोनों गैस थे, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, दोनों मॉलिक्यूल पास आ गए, तो H2O कौन सी स्टेट में जाएगा? पहले गैस स्टेट में था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये किस स्टेट में आ गया? ये आ गया H2O लिक्विड स्टेट में। ठीक है, लेकिन H2S में ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि इसमें सल्फर और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ही नहीं। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग रहेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा ही रहेगी। तो दोनों में से H2 हो गया लिक्विड और H2S गैस। तो इसका रीज़न सिंपल से याद रखना, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा वाई दिस इज़ लिक्विड एंड दिस इज़ गैस, तो यदि उसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव FON, तीन में से कोई एक प्रेजेंट है, तो डेफिनेटली रीज़न क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी टाइप से हम सेकेंड यदि एग्जाम्पल देखना चाहें, सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? PH3 और NH3। तो PH3 ये गैसियस स्टेट में है, NH3 ये लिक्विड स्टेट में है। रीज़न फिर से, NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। PH3 में फास्फोरस और हाइड्रोजन, इनमें कहीं पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, तो ये गैस रहेगा और ये लिक्विड हो जाएगा। तो यदि लिक्विड है इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, और गैस है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुई है। तो ये पहला हो गया इफेक्ट ऑन फिजिकल स्टेट। सेकेंड, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? तो सिंपल सा, पहले हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। तो ये हो गया एक H2O मॉलिक्यूल, सेकेंड ये हो गया सेकेंड H2O मॉलिक्यूल। तो जब ये पहले लिक्विड स्टेट में है, तो लिक्विड से इसको गैस में कन्वर्ट करना है, मतलब बॉईल करना है। तो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा? इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना है। ठीक है, तो अभी इनके बीच में अट्रैक्शन कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको ब्रेक करने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए। बट यहाँ पर यदि हम H2O की जगह H2S लेते हैं, तो इसमें इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं है। तो अट्रैक्शन नहीं है, उसको अलग अलग करना बहुत ईजी है, तो थोड़ी सी एनर्जी देंगे, ये सेपरेट हो जाएगा। तो बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके लिए बहुत कम है, और इसके लिए मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है। रीज़न क्या हो गया? रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सिंपल सा इसको समझेंगे अब हम। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीजेस, सो एक्स्ट्रा एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस अट्रैक्शन, दैट्स वाई देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स हाई। तो ये हो गया इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं हम। थर्ड है आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आपको मालूम है डेंसिटी, सॉलिड और लिक्विड, तो सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है और लिक्विड की डेंसिटी कम होती है। और जब दो आप ऐसे लिक्विड्स को मिलाओगे या दो ऐसे सब्सटेंस को मिलाते हैं जिनकी डेंसिटी अलग अलग हो, तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे। जैसे ऑयल एंड वाटर में ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ऑयल ऊपर रहता है, और वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो वाटर नीचे रहता है। ठीक है, आइस और वाटर में, आइस तो सॉलिड है और सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है, तो
तो सॉलिड को कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, और लिक्विड को ऊपर होना चाहिए, बट केस उल्टा होता है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ऐसा क्यों, तो यहाँ पर डेंसिटी हमने देख रहा है, तो यहाँ रीज़न मिलेगा हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कैसे, तो देखिए स्टेटमेंट यह है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल्स अरेंज इन टेट्राहेड्रल मैनर। टेट्राहेड्रल एक स्ट्रक्चर का नाम है, ये हम देखेंगे कैसे होता है, विच लुक्स लाइक केज स्ट्रक्चर। इन दिस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लॉट ऑफ एयर इज ट्रैप्ड विच रिड्यूसेस द डेंसिटी ऑफ आइस बाय इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, हैंस आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, तो सिंपल से इसको देखना, मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ वाटर का। तो वाटर में हमारे पास 5 H2O, 5 ऑक्सीजन है। इन 5 ऑक्सीजन से क्या करेगा, वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, तो हर एक ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ। C, इस ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, सेकेंड ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, थर्ड ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, फिर इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो ये 5 H2O मॉलिक्यूल्स हैं। ये 5 H2O मॉलिक्यूल्स किस टाइप में अरेंज हैं, टेट्राहेड्रल टाइप में अरेंज है। टेट्राहेड्रल कैसे, तो ये देखो, जब मैं इसमें, अब पहले तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाते हैं कि O और H के बीच में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये ग्रीन लाइन आपको दिख रही है O और H के बीच में, सेकेंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके बीच हो गई, थर्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्थ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिफ्थ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होती रहेगी। अब हम दिखाते हैं इसमें कि टेट्राहेड्रल कैसे बन रहा है। तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये बनता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर 1 2 3 4। ठीक है, इसमें क्या बनाया था मैंने, 5 ऑक्सीजन बनाए थे ना, तो ये देखो 5 ऑक्सीजन जो मैंने बनाया है यहाँ पर, कहाँ पर, ये 5 ऑक्सीजन, ये 5 ऑक्सीजन, तो ये एक टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, H2 हाइड्रोजन मैंने हटा दिया, सिर्फ ऑक्सीजन को दिखा रहा हूँ कि ये टेट्राहेड्रल कैसे बना रहे हैं। ये टेट्राहेड्रल को यदि मैं सॉलिड लाइन से शो करना चाहूँ तो कैसे शो कर सकते हैं, ये सारे ऑक्सीजन्स को आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये सारे ऑक्सीजन्स को 1 बाय 1 ज्वाइन करते हैं हम, तो ये बन गया एक टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रल मतलब सीधा सा इसमें अपनी फिंगर्स लेना, ठीक है, और जो फिंगर्स हैं उसको एक ट्रायंगल बनाते हुए सरफेस में आप रख दो। ठीक है, तो जब अपना पिक्चर को इसको पिक्चराइज करना, पहले अपनी फिंगर्स निकालो, तीनों को इस टाइप से अरेंज करो, अर्थ पे रखो कोई भी एक सरफेस में कि वहाँ पर एक ट्रायंगल बने। तो फिंगर टिप्स आपको फर्स्ट इसमें प्लेन में दिख रही हैं। तो इन तीनों को जब फिंगर टिप्स को आप मिलाओगे तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा। अब तीनों फिंगर जहाँ ऊपर की तरफ आओगे, जहाँ पर ज्वाइन हो रही हैं वहाँ पर एक ऑक्सीजन, तो फिंगर टिप्स में 3 ऑक्सीजन, तीनों जहाँ पर ज्वाइन हो रही हैं वहाँ पर एक ऑक्सीजन, और सबसे टॉप में आपकी रिस्ट में एक ऑक्सीजन। तो ये टोटल 5 ऑक्सीजन हो गए। इन 5 ऑक्सीजन को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक टेट्राहेड्रल मिलेगा। अब इस टेट्राहेड्रल में देखो अंदर कितना सारा स्पेस खाली है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक क्या हो रहा, बाहर से कवर होगा। तो अपने जो अभी हमने फिंगर से आपको स्ट्रक्चर बनाया, तो आप देखो तीनों फिंगर के बीच में वो एयर स्पेस दिख रहा होगा। वो एयर स्पेस क्या कर रहा है, आइस का साइज बढ़ा दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ वॉल्यूम बढ़ने के कारण डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी में सीधा सा रिलेशन है। डेंसिटी इट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो सिर्फ वॉल्यूम बढ़ने के कारण इसकी डेंसिटी कम हो गई, इसीलिए आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। सो ये हो गया आज के डिस्कशन के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। If you like this video, please like and subscribe. Thank you.